Okay, so today we will start a new lesson, indicator of growth and development. In this chapter, we will learn the meaning of economic growth and economic development of a country. So one question is there that how do we know that how do we know that what is the growth of economic development and what is the growth of what is the measurement of economic growth of any country. For that, we can know this by the indicators of growth and development. Okay, so the factors through which we can understand, we can measure the development or growth of any of the country is called indicators. So in this chapter, we will learn about the indicators of growth and development. Right? So let's start. The most important objective of the various countries of the world, more so after the Second World War, has been the attainment of economic development. सभी पूरे वर्ल्ड में सभी कंट्रीज का जो मेन ऑब्जेक्टिव्स होता है, जो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स होता है, और वो भी आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, because there was a lot of destroyed in that war. So the main objective is to attain economic development. कोई भी कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे हो, वो कैसे मिले हमें, यही ऑब्जेक्टिव होता है. The nucleus of all economic thinking has been the attainment of economic development. सिर्फ न्यूक्लियस मीन्स एक सेंटर पॉइंट ही होता है कि हर कंट्री का एक मेन ऑब्जेक्टिव होता है, सेंटर पॉइंट होता है जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ही है. The terms economic growth and economic development has become popular after the Second World War of 1939 to 1944. इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है, वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब 1939 टू 1944 हुआ, उसके बाद ही ये जो दोनों टर्म्स है वो पॉपुलर हुई. Since the developing countries attempt to solve problems like unemployment, poverty, hunger deaths, inequality of incomes and wealth distributions, etc. उसके बाद ही सभी डेवलपिंग कंट्रीज जो है, they started to solve the problem of unemployment, poverty, hunger death, inequality of income and wealth distributions in their country. Okay, उसके बाद ही उन्होंने स्टार्ट किया कि ये अभी जो प्रॉब्लम्स है कंट्री की वो कैसे सोल्व की जाए. It can be said that the awareness level of developing countries towards attainment of development increased since developing countries started attempting to reduce the gap in per capita income level with the developed countries and to increase the standard of living through economic development. तो ये कहा जाता है कि डेवलपिंग कंट्रीज जो है उनमें अवेयरनेस का जो लेवल है वो इंक्रीज हुआ, वो डेवलपमेंट अटेन करने के लिए इंक्रीज हुआ. तब से लेकर जो डेवलपिंग कंट्रीज है उन्होंने अपना जो और डेवलप्ड कंट्री का जो डिफरेंस है, गैप जो है और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो इम्प्रूव करने के लिए अपने अटेम्प्ट्स जो है वो स्टार्ट कर दिए थे. It should be remembered that the need for improving the level of economic development, not for developing countries alone, but also for the developed countries, but for different reasons. तो ये हमें हमेशा याद रखना है कि सिर्फ इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो लेवल है वो इम्प्रूव करना सिर्फ डेवलपिंग कंट्रीज के लिए ही नेसेसरी नहीं है, पर जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनको भी डिफरेंट रीजंस के लिए अपने कंट्री में जो इम्प्रूवमेंट है, इकोनॉमिक इम्प्रूवमेंट जो है वो करना है. Developing countries aim at improving the standard of living of the people by reducing poverty and unemployment, while the developed countries aim at maintaining the prevailing higher standard of living. सो डेवलपिंग कंट्रीज जो भी है, जो अभी डेवलप पूरी तरह से नहीं हुए, सो डेवलपिंग कंट्रीज जो है उनका एम यही एक है कि उनके कंट्री में जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है लोगों का
वो कैसे रिड्यूस किया जाए। तो वो रिड्यूस होता है सबसे पहले पॉवर्टी कम करने से और अनएम्प्लॉयमेंट कम करने से। ये दो चीजें जो है वो कम करने से उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है डेवलपिंग कंट्री का वो कंट्रोल हो सकता है, डेवलप हो सकता है। और डेवलप कंट्री जो है उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, मेन एम क्या होता है कि जो हायर स्टैंडर्ड है, हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है लोगों का, वो मेंटेन रहे, उनको कम ना होने दे, वो मेंटेन करे, डेवलप हो लेकिन उनको कम ना होने दे। सो इफ वी थिंक दिस वे, मेंटेनिंग इकोनॉमिक ग्रोथ is the aim of developed countries and attaining speedy economic development is the prime requirement of developing countries। तो ये हम सोच सकते हैं कि डेवलप्ड कंट्रीज का जो मेन एम है वो क्या है, मेंटेनिंग इकोनॉमिक ग्रोथ। सो दिस लाइन यू हैव टू रिमेंबर दैट मेंटेनिंग इकोनॉमिक ग्रोथ इज द एम ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज। जो डेवलप्ड कंट्रीज है उनका मेन एम है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड अटेनिंग स्पीडी इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज प्राइम रिक्वायरमेंट ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज। जो कंट्रीज अभी डेवलप हो रहे हैं उनकी जो प्राइम रिक्वायरमेंट है, प्राइमरी रिक्वायरमेंट है, इट इज द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। और वो भी अगर स्पीड में हो तो बहुत ज्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि टू अटेन स्पीडी इकोनॉमिक डेवलपमेंट वी हैव टू डू many things we have to do in our country। so generally यहाँ पे why नहीं है, generally economic development and economic growth are considered to be the same। इकोनॉमिक डेवलपमेंट और ग्रोथ का हम मीनिंग जो है वो सेम ही करते हैं, जनरली सेम होता है, लेकिन इकोनॉमिक की लैंग्वेज में वो दोनों का मीनिंग जो है वो डिफरेंट है। सो इन द पास्ट द वर्ड्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वेर यूज्ड इंचेंजेबली। ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है वो एक दूसरे के बदले में यूज करते थे, but few economists have always considered economic growth and okay, so but few economists have always considered economic growth and economic development as different। so ऐसे कई इकोनॉमिस्ट हैं वो इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो मीनिंग है उसको डिफरेंट मानते थे। they consider the economic growth and development as different। so according to Professor Mrs. Ursula Hicks, the solution for the economic problems of developing countries is economic development, and for the developed countries it is economic growth। so remember this thing कि according to Ursula Hicks, the solution for the economic problems of developing countries, जो कंट्रीज डेवलप हो रहे हैं उनका सॉल्यूशन है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, क्योंकि उनको अभी डेवलप करना है, अपने कंट्री को आगे बढ़ाना है, डेवलप करना है, बिकॉज द कंट्री इज डेवलपिंग। ओके, और जो डेवलप ऑलरेडी हो चुका है उनको अभी और ग्रोथ करना है, इकोनॉमिक ग्रोथ करना है। ठीक है, तो डेवलपमेंट जो है वो फर्स्ट स्टेप है, इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो सेकंड स्टेप है। तो ग्रोथ जो है वो डेवलपमेंट के बाद होता है। ओके, सो नाउ let's see the meaning of economic growth। growth means economic growth। growth means economic growth। economic growth relates to the long run increase in the total output of an economy। economic growth क्या है, वो लॉन्ग टर्म एंड लॉन्ग रन लेवल है। मीन्स के इकोनॉमिक ग्रोथ जो लॉन्ग टर्म तक चल सकता है, इज रिलेटेड टू लॉन्ग टर्म एंड इट इंक्रीज इन द टोटल आउटपुट ऑफ इकोनॉमिक। वो क्या है कि वो इकोनॉमी का टोटल जो आउटपुट है वो है। In economic growth, there is a continuous increase in the real national income and the real per capita income। Economic growth में क्या होता है, उसकी जो
और रियल नेशनल इनकम है, पूरे नेशन की जो रियल नेशनल इनकम है वो, और रियल पर कैपिटा इनकम है। पर कैपिटा इनकम मीन्स इंडिविजुअल इनकम। ओके, सो इंडिविजुअल पर मीन्स पर कैपिटा इनकम जो है वो, और नेशनल इनकम जो है वो कंटिन्यूस इंक्रीज होती रहे। ठीक है, सच ग्रोथ इज पॉसिबल ड्यू टू द इंक्रीज इन द सप्लाई ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लाइक लैंड, capital, labor and entrepreneurial ability and increase in their productivity। तो अभी ग्रोथ जो है नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम का ग्रोथ जो है वो कैसे पॉसिबल होगा? सो इट कैन बी पॉसिबल ड्यू टू द इंक्रीज इन द सप्लाई ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जो फैक्टर्स के प्रोडक्शन है जितने भी, जैसे कि लैंड, कैपिटल, लेबर एंड एंटरप्रेन्योरशिप ability, so these are the product factors of production। तो वो इंक्रीज हो और उसके साथ साथ उनकी प्रोडक्टिविटी, जिससे ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है उसके साथ उसकी जो प्रोडक्टिविटी हो उसमें भी इंक्रीज हो, तब ये इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो पॉसिबल होता है। So in short, it can be said that the supply of factors of production, their availability, then productivity and efficiency tend to increase, leading to a continuous increase in real income, real national income and real per capita income। In short, ये कहा जाता है कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है उसकी जितनी भी सप्लाई है, सप्लाई मीन्स स्टॉक से कम, लेकिन सप्लाई जो है उसकी अवेलेबिलिटी जो है कितनी, वो सप्लाई जो है ये सभी फैक्टर्स है तो सही प्रोडक्शन के, लेकिन उनकी अवेलेबिलिटी क्या है, फिर उसमें कितनी प्रोडक्टिविटी होती है और उसमें से कितनी हमें इनकम होती है, एफिशिएंसी कितनी है उनकी, ये जब इंक्रीज हो तब नेशनल जो रियल नेशनल इनकम है और रियल पर कैपिटा इनकम है उसमें भी कंटिन्यूस इंक्रीज होगी। तो इसके लिए सिर्फ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है वो हमें इम्प्रूव करना है, उनमें से अवेलेबिलिटी और प्रोडक्टिविटी जो है वो भी इंक्रीज करनी है। ठीक है, thus इकोनॉमिक ग्रोथ इज ए क्वांटिटेटिव चेंज। तो ये इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो क्वांटिटेटिव चेंज है। ठीक है, तो क्वांटिटेटिव चेंज मीन्स इट कैन बी मेजर्ड बाय क्वांटिटी, क्वांटिटी से जो मेजर हो वो क्वांटिटेटिव चेंजेस, कि ये सभी फैक्टर्स जो है वो कितनी क्वांटिटी में है, कितनी सप्लाई है उनकी, तो ये क्वांटिटेटिव चेंज है। इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो क्वांटिटेटिव चेंज है। So economic growth shows the increase in output and gross national output through which a country's economic status is depicted। तो इकोनॉमिक ग्रोथ जो क्या है, पूरे कंट्री का जो टोटल आउटपुट है और जो ग्रोस नेशनल इनकम का आउटपुट है उसको बताता है, उसको रिप्रेजेंट करता है। इससे पता चलता है कि कोई भी कंट्री की जो इकोनॉमिक कंडीशन है, इकोनॉमिक स्टेटस जो है वो कंट्री का वो कितना है। ठीक है, वो डेपिक्ट होता है, मीन्स इकोनॉमिक स्टेटस जो हर कंट्री का होता है वो इकोनॉमिक ग्रोथ थ्रू डेपिक्ट होता है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन ए कंपेरेटिव इवेल्यूशन ऑफ इकोनॉमीज ऑफ टू कंट्रीज। तो इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है, इट कैन बी हेल्प इन कंपेरिजन ऑफ द टू कंट्रीज। कोई भी दो कंट्रीज के बीच में कंपैरिजन करनी हो जब कि कितनी ग्रोथ कितनी है, डेवलपमेंट कितना है, तो उसके लिए इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो भी हेल्पफुल बनता है। ओके, सो नाउ लेट्स सी द डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। सो इकोनॉमिक ग्रोथ refers to growth rate of national income or rise in total quantum of goods and services। तो इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है? ओके, सो इकोनॉमिक ग्रोथ वो है जो जिसमें जो नेशनल इनकम है उनका ग्रोथ रेट क्या है वो हमें पता चलता है। इट रेफर्स टू ग्रोथ रेट ऑफ नेशनल इनकम और राइज इन टोटल क्वांटम ऑफ गुड्स और सर्विसेज। उस कंट्री में कमोडिटीज हो चाहे गुड्स और सर्विसेज हो, उनमें कितना राइज अप होता है, उसमें कितने
क्वांटिटी में राइज होता है, सप्लाई जो है वो कितनी राइज अप होती है, वो रिफर करता है। ठीक है, सो इकोनॉमिक ग्रोथ रिफर्स टू ग्रोथ रेट and rise in total quantum. Okay, so a long term second, this definition is given by Professor Hansen, and second is Simon Kuznets. Okay, so what is Simon Kuznets said? A long term increase in capacity of a country to supply diverse economic goods to its people is known as economic growth. कोई भी कंट्री की जो लॉन्ग टर्म कंडीशन है, कैपेसिटी है, जो कोई भी कंट्री की कोई लॉन्ग टर्म कंडीशन है, कैपेसिटी है, वो अगर इंक्रीज हो कि उसे हर तरह के की उस कंट्री में हर तरीके की कमोडिटीज हो, गुड्स हो, उनकी सप्लाई में कभी कोई कमी ना आए, तो उनकी जो ये लॉन्ग टर्म कैपेसिटी है उनको भी इकोनॉमिक ग्रोथ कहते हैं। शॉर्ट टर्म नहीं, लॉन्ग टर्म कैपेसिटी होनी चाहिए। सो इट इज कॉल्ड economic growth. Now some limitations also there in the concept of economic growth. So first, economic growth takes into consideration only the quantitative change. Economic जो है उसमें सिर्फ quantitative change क्या होता है उसका ही हमें पता चलता है। ठीक है, वही सिर्फ क्वांटिटेटिव चेंज ही ध्यान में लिया जाता है, वही कंसिडर होता है, क्वालिटेटिव चेंजेस नहीं, सिर्फ क्वांटिटेटिव चेंज ही कंसिडर होता है। तो ये उनकी एक लिमिटेशन है। देन सेकंड इज इन इकोनॉमिक ग्रोथ देयर इज अ राइज इन नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम, बट इंस्टीट्यूशनल एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर्स रिमेन एज बिफोर। इकोनॉमिक ग्रोथ में नेशनल इनकम जो है वो राइज अप होती है, पर कैपिटा इनकम भी राइज अप होती है, बट इंस्टीट्यूशनल और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स जो है वो स्टेडी रहते हैं, वो वही के वही रहते हैं, उसमें कोई चेंजेस नहीं होता है। सिर्फ नेशनल इनकम जो है और पर कैपिटा इनकम जो है वही इंक्रीज होती है। तो उसको ये साइकोलॉजिकल फैक्टर्स को और ऑफिस को, इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स को ध्यान में नहीं लिया जाता। थर्ड इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इज नैरो एंड डिपिक्ट्स ओनली द राइज इन द रेट एंड एक्सटेंट ऑफ आउटपुट। तो इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो नैरो है, मीन उनका कॉन्सेप्ट जो है वो नैरो है, वाइड नहीं है, सिर्फ उसमें रेट और आउटपुट ही ध्यान में लिया जाता है। सिर्फ वो हमें सिर्फ जो रेट क्या है, नेशनल इनकम रेट क्या है और आउटपुट क्या है इकोनॉमी का, वही हमें पता चलता है और कुछ पता नहीं चलता है कंट्री के बारे में, और कुछ उनकी लाइफस्टाइल के बारे में, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के बारे में हमें पता नहीं चलता है। मीन्स लोगों के लिए सिर्फ ये साइकोलॉजिकल मीन्स पता नहीं चलता है कि उनमें कितना डेवलपमेंट हुआ है, सिर्फ क्वांटिटेटिव चेंजेस जो है वही होते हैं, वही पता चलता है। ओके, तो नेक्स्ट इज द कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इज नॉट ऑफ मच यूज इन अंडरस्टैंडिंग द वेलफेयर ऑफ द पीपल। जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उनका जो कॉन्सेप्ट है वो, उससे लोगों की वेलफेयर जो है वो हमें पता नहीं चलती है। ठीक है, उनमें क्या क्या चेंजेस होता है वो हमें पता नहीं चलता है, जैसे कि उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, उनका वेलफेयर क्या है, किसमें है, उसके बारे में हमें पता नहीं चलता है। ओके, सो दीज आर द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, definitions and limitations. So we learned about economic growth in this topic. Okay, so let's start the next, economic development. So what is the meaning of economic development? Let's see. We need to understand as to what economic development actually means when economics of Asia, Africa and Latin America have become proactive and achieving economic development. ओके, सो अभी हम देखते हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट का एक्चुअली मीनिंग क्या है। जब एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका जो है उनकी जो इकोनॉमिक कंडीशन है, उनके लिए वो कितना प्रोएक्टिव बने हैं, मीन्स कितना एक्टिव बने हैं, कंटिन्यूस एक्टिव कितना बने हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट अचीव करने में वो कितना एक्टिव है, प्रोएक्टिव है,
उससे पता चलता है। ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज ए प्रोसेस विच इज कंटिन्यूअस टू अचीव इकोनॉमिक वेल बीइंग। इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है? एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है इकोनॉमिक वेल बीइंग अचीव करने के लिए। सो हेंस द टर्म इकोनॉमिक डेवलपमेंट हैज अ वेरी वाइड मीनिंग which includes economic growth, economic welfare and economic progress. So remember that economic development is a wide term. ठीक है, बहुत बड़ा वाइड मीनिंग है उसका, वाइड टर्म है। सो इन विच इंक्लूड्स इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक वेलफेयर एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस एंड वेलफेयर ऑफ पीपल, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल, ये सभी बातें जो है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इंक्लूडेड है। सो इट इज अ वाइड मीनिंग, इट इज अ वाइड टर्म। ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ में सिर्फ क्वांटिटेटिव चेंजेस ही होते हैं, सिर्फ क्वांटिटी को ही ध्यान में रखा जाता है, लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इकोनॉमिक ग्रोथ को भी ध्यान में रखा जाता है और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, प्रोग्रेस एंड इकोनॉमिक वेलफेयर ऑफ पीपल, ये सभी चीजें भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आ जाती है। So even in economic development, there is an increase in the real national income and real per capita income. But economic development is not just about quantitative changes, but also about qualitative changes. Okay, economic development में भी real national income है, real per capita income है, उसको increase करना है, वो भी increase होती है, लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में सिर्फ क्वांटिटेटिव चेंजेस नहीं होता है, उसमें क्वालिटेटिव चेंजेस भी होता है। मींस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो भी देखा जाता है, प्रोग्रेस और वेलफेयर ऑफ पीपल जो है ऑल्सो कैन बी इंक्लूडेड। सो डेवलपमेंट इज डिफरेंट फ्रॉम ग्रोथ। डेवलपमेंट जो है वो ग्रोथ से डिफरेंट है इन इकोनॉमिक्स लैंग्वेज। इट इज ए मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस, मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस है, बहुत कंटिन्यूस है प्रोसेस ये, और इसमें बहुत सी स्प्रेड होती है, इनका मीनिंग जो है बहुत ही डायमेंशनल स्प्रेड ओवर हुआ प्रोसेस है। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग इकोनॉमिक एंड सोशल स्ट्रक्चर ऑफ द इकोनॉमिक चेंजेस, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट और सोशल स्ट्रक्चर जो है वो इकोनॉमी का वो चेंजेस होता रहा। अलोंग विद द इकोनॉमिक प्रोग्रेस टेक्स प्लेस इन द सोसाइटी टू। जब इकोनॉमिक प्रोग्रेस हुआ तो सोसाइटी में भी प्रोग्रेस हुआ। जनरली द स्ट्रक्चर ऑफ नेशनल इनकम ऑल्सो अंडरगोज ए चेंज। इससे जो इकोनॉमिक नेशनल इनकम का जो स्ट्रक्चर है वो भी चेंज होता जा रहा है। ठीक है, वो भी चेंज हो रहा है। The contribution of agriculture as percentage of the total national income decreases. एग्रीकल्चर का जो भी कंट्रीब्यूशन है, एग्रीकल्चर मीन्स जो हमारी खेती है, उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, मीन्स कंट्रीब्यूशन जो है वो जो एग्रीकल्चर फैक्टर्स है उनका जो कंट्रीब्यूशन है हमारे नेशनल इनकम में वो बहुत ही कम होता जा रहा है। बिकॉज अभी जो है वो सभी इंडस्ट्रीज की ओर बढ़ रहे हैं, जो एग्रीकल्चर लेवल है वो थोड़ा, उसका जो नेशनल इनकम है उसमें उनका कंट्रीब्यूशन जो है वो डिक्रीज होता रहा है। ठीक है, द कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री एंड सर्विस सेक्टर इंक्रीजेस। तो इंडस्ट्रीज और सर्विसेज सेक्टर्स जो है उसका जो कंट्रीब्यूशन है हमारे नेशनल इनकम में वो ज्यादा है, लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर जो है उनका जो परसेंटेज है, रेट है टोटल नेशनल इनकम में वो कम है। The disguised unemployed in agriculture sector get employment in other sectors. जो एग्रीकल्चर लेवल पर जो काम कर रहे हैं, जो एम्प्लॉयमेंट जो है वर्कर्स जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर्स पर काम कर रहे हैं, उनको जब डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयड हो, वो जब डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयड मीन्स जितने भी एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या होता है कि साल के
3-4 महीने काम करना होता है, फिर क्रॉप्स रेडी होता है और 4-5 महीने जो है उनको फ्री बैठना होता है। ठीक है, तो उनके पास काम है लेकिन वो डिस्गाइज्ड है, अगले नेक्स्ट क्रॉप लेने के लिए उनको गैप रखना होता है। तो ये इन दिनों में उनकी पास जो एम्प्लॉयमेंट के कोई इनकम नहीं होती है। ठीक है, तो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयड हुए, तो उतने साल उनको फ्री बैठना होता है। तो इसकी वजह से वो क्या करते हैं, जो अदर सेक्टर्स है इंडस्ट्रीज के या फिर सर्विस सेक्टर्स है उसकी तरफ जाते हैं। मॉडर्न टेक्नोलॉजी इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड ड्यू टू विच टाइम एंड मनी इज सेव। जो मॉडर्न हमारी टेक्नोलॉजी है वो टाइम और मनी दोनों बचाती है। हर कोई जो है वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो है वो सभी में इम्प्लीमेंट होती है। एग्रीकल्चर लेवल पर भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो है वो इम्प्लीमेंट होती है, वो सभी यूज करते हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयड जो है वो इंक्रीज होती है। न्यू सीड्स आर इनोवेटेड एज ए रिजल्ट द स्ट्रक्चर ऑफ इंस्टीट्यूशंस pertaining of production and distribution changes। न्यू सीड्स जो है वो इनोवेटेड होता है, मीन्स न्यू सीड्स जो है वो इम्प्लीमेंट करते हैं, मीन्स उनका यूज जो है वो ज्यादा करते हैं। ठीक है, जो ज्यादा सीड्स जो अच्छे बियर, जो सबसे ज्यादा अच्छी क्वालिटी हो वो न्यू सीड्स जो है वो इनोवेटेड होता है, वो सभी यूज करता है। उसकी वजह से ज्यादा एग्रीकल्चर सेक्टर पर ज्यादा प्रोडक्टिविटी होती है। ठीक है, तो इसलिए प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन में जो चेंजेस आता है वो न्यू टेक्नोलॉजी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज करने की वजह से आता है। सो पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट एंड इनइक्वालिटीज फॉल ड्यू टू सच सिस्टमेटिक चेंजेस। जो इसकी वजह से, मॉडर्न टेक्नोलॉजी की वजह से पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट जो है या फिर इनइक्वालिटी ऑफ इनकम जो है ये कम होती है, क्योंकि ये जो न्यू टेक्नोलॉजी है, न्यू सिस्टमेटिक चेंजेस तो होते रहते हैं, उसकी वजह से ये पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट जो कम हो सकता है। ओके, सो दिस वाज द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और नेक्स्ट जो हम करेंगे, नेक्स्ट मीटिंग में स्टार्ट करेंगे। ओके, ठीक है। ओके, चलो लेट्स स्टार्ट द डेफिनेशंस आल्सो, कैरेक्टर हम बाद में करेंगे। ओके, सो लेट्स सी। Economic development is a multi-dimensional process। इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो मल्टी डिमेंशनल प्रोसेस है, उनमें जो ये प्रोसेस जो है बड़ी लॉन्ग टर्म है और मल्टी डिमेंशनल, उसमें बहुत सा जो इंक्लूडेड है, बहुत सी प्रोसीजर है वो इंक्लूडेड है। प्रोग्रेस जो है, देन ग्रोथ, देन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये सभी इंक्लूडेड है। ओके, सो माइकल टोडेरो जो है वो ये डेफिनेशन देते हैं। देन नेक्स्ट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज सच ए प्रोसेस इन विच देयर इज नो इंक्रीज इन द पॉपुलेशन लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम does not further increase the inequalities, and there is a continuous rise in the real per capita income of the country for a long period of time। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो ऐसी प्रोसेस है जिसमें जो लोग जो है वो पॉवर्टी लाइन के नीचे जो जी रहे हैं, दे आर लिविंग इन बिलो द पॉवर्टी लाइन, उसकी जो पॉपुलेशन है उसमें ज़्यादा इंक्रीज ना हो और इसकी वजह से उसकी जो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो इनइक्वालिटी ना हो उसमें भी। ये सभी कंडीशंस पर जो है वो पर कैपिटा इनकम और नेशनल इनकम जो है ये लॉन्ग टर्म तक इंक्रीज होती रहती है। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में ये होता है कि उनकी पॉपुलेशन जो है और उनकी जो इनकम जो है, इनइक्वालिटी इन इनकम जो है वो ज़्यादा ना हो, इंक्रीज ना हो, और जो नेशनल इनकम है उसमें भी लॉन्ग टर्म तक इंक्रीज होता रहे। तो ये जो है डेफिनेशन GM मेयर ने दी है। कि नाउ नेक्स्ट इज
Economic development is a process which increases the factors of production and create change in the technique of production, due to which per capita income continuously increases and the standard of living continuously rises, irrespective of whether population remains constant and increases. इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो प्रोसेस हो जिसमें फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है वो भी बढ़ता है, देन उनकी जो चेंजेस आते रहते हैं जो प्रोडक्शन में और न्यू टेक्नोलॉजी में, जो उसकी प्रोडक्शन के जो न्यू टेक्निक्स है उनमें भी चेंजेस आते रहते हैं, ठीक है, इसकी वजह से। और उससे ड्यू टू दिस पर कैपिटा इनकम इज ऑल्सो कंटिन्यूअस इंक्रीजेस, जिसमें पर कैपिटा इनकम इंक्रीज होती हो और जिसमें लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ पीपल ऑल्सो कंटिन्यूस राइजेस, ठीक है, कंटिन्यूअसली जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है, वेलफेयर ऑफ पीपल जो है वो राइजेस होता रहे, ये सभी जो है चीजें वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट आती, तब हमें पता चलता है कि उनका जो वो कंट्री का जो डेवलपमेंट है, जो उनका डेवलपमेंट है वो कंटिन्यूस कांस्टेंट इंक्रीज होता रहता है। तब ये कहा जाता है जब प्रोडक्शन के फैक्टर्स है उनमें भी इंक्रीज हो, प्रोडक्शन की टेक्निक है उनमें भी इंक्रीज हो और पर कैपिटा इनकम एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में भी इंक्रीज हो, तब कहा जाता है कि वो कंट्री का डेवलपमेंट हो रहा है। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ, these are the definition of development. Okay, so अभी नेक्स्ट मीटिंग में करेंगे। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।